جانیے بنی اسرائیل کے ان خاندانوں کے متعلق جو دنیا کی طاقتور اقوام میں پنہاں ہیں۔ دیکھیے کتاب مقدس کس طرح سبتی اور یوبلی سالوں کے وسیلے امریکہ اور برطانیہ کے ہولناک مستقبل کو افشا کرتی ہے۔ جانیے اسور کی حقیقت اور اس حتمی دور یوبلی میں اس کے کردار کے متعلق۔ سیکھیے ان سزاؤں کے متعلق جو سبتی سالوں کے عدول کی بدولت جلد رونما ہونے والی ہے۔ سائٹڈ مون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ نے اس کے متعلق سن رکھا ہو اور کچھ نے نہیں۔ میری آنے والی کتاب کے پہلے 3 ابواب بھی اسی کے متعلق ہیں، اور اس کی وجہ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے جسے لے کر جتنی شائستگی برتی جا سکتی تھی میں نے برتی ہے۔ کچھ مسیحی قائدین 2 گھرانوں والے نظریے کے دعوے دار ہیں۔ مجھے لگا وہ 2 گھرانے یہودا اور افرایم ہوں گے یا پھر یہودا اور یوسف، مگر در حقیقت وہ 2 گھرانے یہودا ہی ہے، یہودا اور دیگر یہودی۔ مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا ہم نے اس سمیت دوسری کئی باتوں پر انتہائی سیر حاصل گفتگو کی۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر جن کے متعلق مجھے گمان تھا کہ وہ سمجھ چکے ہیں، مجھے دوبارہ وضاحت کرنا پڑی تاکہ وہ اسے ٹھیک سے سمجھ پائیں۔ جیسے میں نے کہا، میں نے اسے ثابت کرنا ہے اور کچھ اس طرح سے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس کے قائل ہو جائیں۔ ہم انہی سوالات کے جواب دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہاں گئے اور آج ان کی پہچان کیا ہے؟ ہر کسی کا کہنا یہ ہے جوج روس ہے، اور ماجوج بھی روس ہی ہے، روس یا چین یا جو بھی آپ سمجھنا چاہیں، اور بائبل میں ان کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ روئے زمین کی عظیم اقوام نہیں ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ بھی ہے، اور وہ کہاں ہیں؟ اب سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو برطانوی اسرائیلیت کا راگ الاپ رہا ہے۔ اس نے ورلڈ وائڈ چرچ آف گاڈ کو پیچھے کر دیا ہے، جبکہ یہ خود بھی اسی سے نکل کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ نے تحقیق کی یا کسی نے اسے متروک کہہ دیا اور بس؟ مجھ سے بھی یہی کہا گیا تھا، یہ کتاب آپ کے لیے خطرناک ہے، یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرف مت دیکھنا۔ اگر میں بھی مان لیتا تو اسے کبھی نہ پڑھتا۔ 1994 میں نے ورلڈ وائڈ چرچ آف گاڈ کو خیرباد کر دیا کیونکہ وہ کیتھولک عقائد ماننے لگے تھے، اور تو پھر سے مجھے یہ سب ثابت کرنا پڑا، اور اس کے لیے میں نے برطانوی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا استعمال کیا، حالانکہ ان دنوں میں کمپیوٹر کا استعمال اتنا عام نہیں تھا، جس کا بس ایک بٹن دبائیں اور ساری معلومات آپ کے سامنے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ انسائکلوپیڈیا کی کڑی سے کڑی ملانا کتنا محنت طلب کام تھا، اور میں نے یہ سب کیا ہے جو واقعی مشکل تھا۔ میں نے اپنے خاندان کا سراغ لگاتے ہوئے 892 مسیح تک اپنے شجرہ نسب کا بنام کھوج لگایا ہے۔ سن 892 1300 میں اسکاٹ لینڈ، 892 میں فرانس، 1400 میں انگلستان اور 1500 تک آئرلینڈ میں سب پر نام بنام کام کر چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے ناموں کے کیا معنی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا خاندان کہاں سے آیا ہے، اور یہ بھی کہ میں کون ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گم شدہ نسل انہی کے درمیان ہو، اور میں نے اس گم شدہ نسل میں پرورش پائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس دستاویز کے متعلق بول رہا ہوں۔ خیر، سب لوگ یہی چاہتے ہیں، اور اگر میں وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں تو اپنے پیغام پر توجہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، شاید آپ کو تھوڑا بورنگ لگے، لیکن میں چند پرانی باتیں دہراؤں گا، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ میں سوالات بھی کروں گا۔ اگر بنی اسرائیل سے وعدے کیے گئے ہیں تو وہ اس وقت کہاں ہیں؟ 1389 قبل مسیح میں، یعنی خروج کے وقت اسرائیل ایک امت بن کر ابھرا۔ جی ہاں، یہ بات نبوت ابراہیم میں بھی درج ہے، اور اگر یوبلی ادوار اور تواریخ کا حساب لگایا جائے تو یہی عدد بنتا ہے۔ اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو بتائیے، لیکن آپ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں نے اس پر کام کیا ہے۔ میں آپ کو للکار رہا ہوں میں آپ کو للکار رہا ہوں، میں آپ کو غصہ دلا رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو اس پر تحقیق کریں۔
تو آپ اس کا جواب لا کر دیں۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں۔ 1379 قبل مسیح میں خروج کا واقعہ ہوا اور 42 سال بعد وہ یردن پار کر کے ملک معود میں داخل ہوئے۔ 1809 قبل مسیح میں ابراہیم کی اولاد سے سرزمین اسرائیل کا وعدہ کیا گیا۔ یہ وہ دور ہے جب یہوہ نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، اور کچھ لوگوں کے مطابق ملک معود کچھ ایسا تھا۔ اور ایسا کب ہوا؟ جی ایسا ہوا، یہ داؤد بادشاہ کی سلطنت ہے، یعنی 1010 قبل مسیح، اور جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ داؤد بادشاہ کی حکومت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ثبوت کے طور پر ہمیں ہر جگہ پر عبرانی تحریریں نظر آتی ہیں۔ لوہے کو عبرانی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رکیے، کوئی اور؟ گلین؟ بارزیل، بے زے لام، کوئی بتا سکتا ہے کہ بارزیل کس ملک کو کہتے ہیں؟ کیا؟ او مجھے لگا آپ اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، برازیل۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی اسے دنیا کا آئینی دارالحکومت مانا جاتا ہے، اور جو لوہا وہاں سے درآمد کیا جاتا تھا اسی کی وجہ سے داؤد بادشاہ نے اسے یہ نام دیا تھا، برازیل۔ شمالی میشیگن، میں نے کل بھی بتایا تھا، جو تانبا ہیکل کی تعمیر کے لیے استعمال ہوا تھا، شمالی میشیگن سے لایا گیا تھا، اور وہ تانبا اب بھی ہیکل کے نیچے داؤد بادشاہ کی قبر میں عین اسی جگہ موجود ہے جہاں ہیکل ہوا کرتی تھی، اور میں نے وہ داخلی دروازہ بھی دیکھا ہے، لیکن میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ سن 930 قبل مسیح میں سلیمان کی وفات کے بعد متحدہ سلطنت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا میں بٹ گئی۔ اب یہاں اکثر لوگوں کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اسرائیلی یہودی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہر امریکی باشندے کو ٹینیسین کہنا۔ ہر ٹینیسین امریکی ہے، لیکن ہر امریکی ٹینیسین نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ تمام یہودی اسرائیلی ہیں، مگر تمام اسرائیلی یہودی نہیں ہیں۔ 10 شمالی قبائل ہی ہیں جو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہودا کو یہودا ہی کہا جاتا تھا۔ اس بٹوارے کے بعد وہ اسرائیل نہیں کہلائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے نام کی برکت یعقوب کے بیٹے یوسف کے قبیلے کو حاصل ہوئی۔ اگر نبوت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے بھی سمجھنا پڑے گا کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمام بنی اسرائیلی یہودی ہیں۔ جی نہیں، تمام بنی اسرائیلی آج یہودا کی سرزمین میں اسرائیلی ریاست میں بسے ہوئے ہیں۔ جی نہیں، اسرائیل اور یہودا ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہوئے۔ جب تک میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ اس میں سے کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ذرا اسے ایک نظر دیکھ لوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہاں ہمیں کتاب مقدس میں 2 الگ طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل یہودا کے خلاف لڑا اور یہودا اسرائیل کے خلاف لڑا۔ وہ ایک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی ہیں۔ جی، وہ سب ایک ہی ہیں۔ اسے ذرا سمجھیے، تمام ٹینیسین امریکی ہیں، لیکن تمام امریکی ٹینیسین نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہ 10 قبائل ہیں، اور وہ کچھ اس طریقے سے بسے ہوئے تھے کہ یہ ان کی سلطنتوں کا حصار ہے، اس سے قبل کہ وہ اسیری میں جاتے۔ پیدائش 15:4، تب یہوہ کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ یعنی اسماعیل تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ 5ویں آیت، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ مجھے خود بھی اسے اپنی اسکرین پر پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ پیدائش 12:2، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ پیدائش 12:3، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے ان پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ چنانچہ منسی کا وہ قبیلہ جو کہ شمالی ہندوستان میں آباد ہے، یہ قبیلہ شمار میں ستاروں سے بھی زیادہ ہے، صحیح؟ نہیں، وہ قبیلے جو اس وقت چین میں آباد ہیں وہ شمار میں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ہے نا؟ جی نہیں۔ ان برکتوں کو یاد رکھیے جو اسرائیل کو ملنے والی تھیں۔
पैदाइश 15वां बाब 16वीं आयत। और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। इससे क्या मुराद है? हर कोई इसे देखकर यही कहता है कि यहां इब्राहिम से चौथी पुश्त की बात की जा रही है, यानी वो दौर जब वो खुरूज करके मुल्क मऊद में दाखिल हुए। जी हां, ऐसा कहा जा सकता है। याद है जो मैंने इब्राहिम के मुतालिक तारीख बताई थी? इब्राहिम आदम की तख्लीक के बाद 1948 में पैदा हुए, लिहाजा आदम की तख्लीक के साथ ही पहले साल का आगाज होता है। उल्टे हाथ पर सबसे शुरू में यह पहला योबली दौर है जो कि 49 साल का है। अब आप हर एक को 49 के हिसाब से गिनेंगे, लिहाजा पहला 1000वीं दिन 20 योबली अदवार पर मुश्तमिल है। 20 ज़रब 49, 100 एक हजारी दिन। कौन? ग्लेन? नहीं स्टीव, आप कल मुझसे इसके मुतालिक पूछ रहे थे, लेकिन फिर हम किसी और काम में लग गए। 1000 दिन 980 साल का है। ओहो, उन्होंने इसे मतवाजन कर दिया है अजीजों। दूसरा 1000 दिन 1960 है और तीसरा 2940 है। इब्राहिम की पैदाइश कब हुई? 1948 में। चुनाचे इब्राहिम तीसरे 1000 दिन की शुरुआत में है। अब यहां से 4000 अय्याम को गिनिए। नारंगी रंग से पहले गिनिए, क्योंकि यह शुरुआत में है, लिहाजा आप इस पूरे को गिनिए। सुर्ख वाला 2 है, पांचवां वाला यानी पांचवां नीला कॉलम 3 है और चौथे 1000 साल के इख्तिताम में जामनी रंग है। क्या आपको वो तारीख दिखाई दे रही है? 5880। 5880 हमारे 2045 की तारीख से मेल खाता है। यह सब कुछ नबूवत इब्राहिम में मरकूम है। मैंने दोनों कैलेंडर साथ रखे हैं ताकि आप इनका मवाजना कर सकें। 5880 2045 है। इसका मतलब यह है कि हम इस वक्त 5849 में खड़े हैं। 5849, यहां 5849 कहां है? यह रहा इब्राहिम के इस चौथे दिन के इख्तिताम के करीब। देखा आपने? नजर आया? अगर आप इसे यहां नहीं देख पा रहे हैं तो यह नबूवत इब्राहिम में भी मौजूद है। इस वक्त हमारे पास नबूवत इब्राहिम का कोई नुस्खा मौजूद नहीं, लेकिन वो मेरी वेबसाइट पर दस्तयाब है, आप उसे वहां से हासिल कर सकते हैं। यह सब इस किताब में आपको मिलेगा और इसे लिखने का मकसद आपको यह बावर कराना है कि इस वक्त हम इब्राहिम से चौथे यानी चौथे 1000 दिन में खड़े हैं और हम इस अर्ज़ मुक़द्दस पर वापसी करने के इंतहाई करीब हैं। लेकिन हम उस तरह वापस नहीं जाएंगे जिस तरह अक्सर सिखाया जाता है। इस हफ्ते में आपको यही बताऊंगा। पैदाइश 17 बाब 5 आयत। और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, किसी एक का नहीं बल्कि बहुत सी कौमों का बाप। इसराइल में कितनी रियासतें हैं? इसराइली कौमों की तादाद क्या है? तकरीबन 13 से जायद। 13 का मतलब है इसराइल के 13 कबीले। इसराइली कबाइल में से चंद दूसरे कबाइल भी निकले हैं, हम आपको यही दिखाने वाले हैं। पैदाइश 17:6 और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। पैदाइश 17:7 और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद। यहाँ भी अहद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इस हफ्ते में लफ्ज अहद कई बार देखने को मिला है। जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का एलोहीम रहूं। पैदाइश 17:8 और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मिल्कियत हो जाए और मैं उनका एलोहीम हूंगा। एक बड़ी कौम, मुताद्दिद अक़वाम। अगर वो यहूदी हैं तो आज कहां हैं? अच्छा, रियासत न्यूयॉर्क में या रियासत इसराइल में? यह समझ से बाहर है, नामुनासिब भी। पैदाइश 25, यहां एक और बरकत है। पैदाइश 25:5 और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। पैदाइश 25:6 और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। सारी विरासत इसहाक को मिली। तारीख में अगर देखा जाए तो ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका नाम इसहाक है। इनका जिक्र तारीख इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है। यह मालूमात आपको वहां से मिल जाएगी, गूगल करके देख लीजिए।
یہ سب وہاں موجود ہے۔ خیر، تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو، چنانچہ منسی کا قبیلہ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں پر قابض ہے نا؟ یہودا اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کا مالک ہے۔ نہیں، یہودا نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ درہ جبرالٹر کہلاتا ہے۔ درہ ایک ایسی گزرگاہ جو کسی فوج کے زیر انتظام ہوتی ہے اور ایک جانب سے دوسری جانب ایک تنگ داخلی راستے سے ہو کر جاتی ہے۔ جبرالٹر اس وقت کس کے زیر انتظام ہے؟ برطانیہ کے؟ یہ کون لینا چاہتا ہے؟ ہسپانیہ؟ برطانیہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پیدائش 26 اس کی 3 آیت۔ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو، وہ قسم کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے۔ یہ ہفتوں کی عید کیا ہے؟ یہ عید قسم کی عید ہے، کیونکہ ہم اس قسم سے پھر گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور میں اتنی بار آپ کو اس کی یاد دہانی کراؤں گا کہ آپ مجھ سے تنگ آ جائیں گے، اور آپ مجھ سے تنگ آ جائیں گے، مگر مجھے امید ہے کہ آخر کار آپ اسے سمجھ ہی جائیں گے۔ مجھے یقین ہے جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پوری کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ یہاں اسحاق سے کلام کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی ہے۔ یاد ہے میں نے کل کیا کہا تھا؟ میری نصیحت کو محفوظ رکھا، میرے سبتوں، میرے حکموں، میرے قوانین اور میری شریعت توریت کو محفوظ رکھا۔ جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو کسی کو بھی اسے پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ سبت کے دن نہ تو کوئی میرے گھر آتا ہے، نہ میں لین دین کرتا ہوں۔ سبت کے دن میں فون پر بھی کوئی چیز نہیں خریدتا۔ ہر ایک سبت پر میں فون ہی نہیں اٹھاتا۔ سبت کی حفاظت کیجیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ پیدائش 24:60۔ اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا، ربکا یعقوب کی شریک حیات بننے جا رہی ہیں۔ اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ یہاں ایک مرتبہ پھر پھاٹکوں کی ملکیت کا ذکر ہوا ہے۔ دلچسپ بات ہے، ایک بار پھر وہی بات، آپ نے پہلے اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ خیر، یہاں مجھے ایک ایسی بات پڑھنے کو ملی جسے لوگ پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ یہ اپنی اصل کو جاننے کی ایک انتہائی اہم کڑی ہے۔ پیدائش 25:22۔ اور اس کے یعنی تمر کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ ایسا ہی ہے؟ اور وہ یہوہ سے پوچھنے گئی۔ یہوہ نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں۔ کس کے؟ تمر کے۔ 2 قومیں تیرے بطن میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہاں تمر ہے، اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسا ہی ہے؟ شاباش، آپ توجہ سے سن رہے تھے، یہ آپ کا امتحان تھا۔ شکریہ ربکا۔ اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا۔ دراصل میرے سامنے غلط سلائیڈ کھلی ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، یہ سلائیڈ صحیح ہے، اور اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ ہم سبھی اس واقعے کو جانتے ہیں کہ عیساؤ شکار سے واپسی پر بھوک سے نڈال ہو رہا تھا اور اسے کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اور یعقوب ایک یہودی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے کھانا بیچ دیتے ہیں۔ یعقوب یہودی نہیں تھے عزیزو، اس دور میں یہودیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لوگوں کے منہ سے ادا ہونے والے ان تعصب انگیز مخالف بیانات کو روکیے، ان کی تصحیح کیجیے، انہیں بتائیے کہ یعقوب یہودی نہیں تھے۔ آگے کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ عیساؤ نے اپنے پہلوٹے کا حق بیچ دیا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ عیساؤ ایک شکاری تھا، وہ شکار مارا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک اور کڑی ہے۔ یرمیہ میں لکھا ہے کہ میں ماہی گیروں کو بھیجوں گا اور وہ تمہارا شکار کریں گے۔ یہوشوا نے کہا کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میں شکاریوں کو بھیجوں گا اور وہ تمہیں ان شگافوں اور چٹانوں سے پکڑ نکالیں گے جہاں تم چھپے ہوگے۔
यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ ईसाऊ की बात हो रही है। यही वजह है कि आज मैंने वो मुसलमानों वाली बात छेड़ी थी। वो आ रहे हैं और वो आपको उन चट्टान और गारों से पकड़ निकालेंगे जहां आप छुपे होंगे। चुनाचे अब यहां याकूब अपने बाल बच्चों के साथ कुछ चालबाजी करते हैं, लेकिन जल्दबाजी से पहलौठे की बरकत हासिल कर लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि रिबका को पहले ही पहलौठे की बरकत अता कर दी गई थी, लेकिन फिर भी आप याकूब ने ऐसा किया। यह है वो बरकत। पैदाइश 27 बाब, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो। आप याकूब का भाई कौन था? ईसाऊ। और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। जाहिर सी बात है, पहलौठे की बरकत पर पहलौठे बेटे का ही हक होता है। ये बरकत हासिल करने के लिए याकूब ने अपने बूढ़े नाबीना बाप इसहाक को धोखे से ये यकीन दिलाया कि वो ईसाऊ हैं। हम ये जानते हैं, लेकिन ईसाऊ को भी बरकत दी गई। पैदाइश 27:37। इसहाक ने ईसाऊ को जवाब दिया कि देख, मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया है और उसके सब भाइयों को उसके सुपुर्द किया कि खादिम हो, और अनाज और मैं उसकी परवरिश के लिए बताई। अब ऐ मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं? गौर कीजिएगा, यहां इसहाक ईसाऊ से हम कलाम है। तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, देख, खुशहाल जमीन में तेरा मस्कन हो, सारा तेल उन्हीं के पास है, और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो, और तू अपने भाई की खिदमत करे। गौर करें, जब तू बेआराम हो, नाइटली न्यूज में आजकल क्या खबरें चल रही हैं? जब तू बेआराम हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंके। ईसाऊ अब भी बेचैन हो रहा है और आज भी मौजूद है। अब उसे अरब कहा जाता है, और इसके नताइज सूर्या शाम में देखे जा सकते हैं। यह सब कुछ इस वक्त हो रहा है। आपका तो पता नहीं, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं, जागिए, जाग जाइए। पैदाइश 28:1। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। पैदाइश 28:2। तू उठकर फिदान आराम को, ये वही जगह है जहां हाल ही में मैंने एक पाकिस्तान लगाया है, अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। पैदाइश 28:3। और यहोवा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। कौमों के जत्थों से क्या मुराद है? दौलत मुश्तरका। ये दुनिया के किस हिस्से में है? चीन की दौलत मुश्तरका कहां है? भारत की दौलत मुश्तरका कहां है? मैं सिर्फ एक दौलत मुश्तरका के मुतालिक जानता हूं, वो बरतानिया है। कनाडा दुनिया की अजीम तरीन अक़वाम में से एक है, उसका हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की दूसरी अजीम तरीन कौम भी इसी का हिस्सा है। और न्यूजीलैंड, यहां कोई न्यूजीलैंड वाला तो नहीं? जी, न्यूजीलैंड भी, ये भी उसी का हिस्सा है। अमेरिका और सारे सरकश यांकी भी इसी का हिस्सा हैं, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद भी ये इंग्लिस्तान की खैर सगाली के ख्वाह रहे। हम आपको दिखाएंगे कि आपका ये नाम कैसे रखा गया। चुनाचे याकूब अपनी बीवी की तलाश में रवाना हुए और रास्ते में आपको नींद आ गई और आपने ख्वाब में एक सीढ़ी देखी जिसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ था, और आपने फरिश्तों को उस पर चढ़ते और उतरते हुए देखा, और उसी जगह यहोवा ने आपके साथ अपने वादों को दोहराया। ये वाकया पैदाइश 28 बाब में दर्ज है। और आपने उस पत्थर को उठाकर उसे मसा किया, और तमाम किताब मुकद्दस में आपको इस पत्थर का जिक्र मिलता है, वो अमूदी पत्थर जिस पर इसराइल के तमाम बादशाहों को मसा किया जाना था। और याकूब ने उसे एलोहीम के घर में एक सुतून के तौर पर खड़ा किया। ये यहोवा की हैकल का सुतून है।
मैं एल बैत एल हूं, जहां तूने सुतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। देखिए यह कितना अहम सुतून है कि यहोवा ने खुद उस पर नजर की। ये रहा बैत एल। आप इसे यरूशलेम के सिलसिले में देख सकते हैं। पैदाइश 35:1। और एलोहीम ने याकूब से कहा कि उठ, बैत एल को जा और वहीं रह, और वहां एल के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई ईसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान में है दूर करो। वो किसके पास थे? रिबका के, राखल के। जी राखल के। मैं आज सभी खवातीन के नामों को मिला रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं। आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहां मैं एल के लिए मज़बा बनाऊंगा। हम उस मज़बा की खोज में लगे हुए हैं। एक तो हमें मिल गया है, 2 पहाड़ों यानी बरकत और लानत के पहाड़ों पर। पिछले साल मैं गलत पहाड़ पर चला गया था। चुनाचे उन्होंने उन बुतों को अपने दरमियान से दूर करके सफर का आगाज किया। आइए देखते हैं दूसरा सलातीन 11 बाब में हम उस सुतून के मुतालिक दोबारा पढ़ते हैं। सलातीन 11:12। फिर उसने शहजादा को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा उसे दिया, और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया, और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जिंदाबाद। आप हर बार नए सदर के इंतखाब पर ऐसा ही करते हैं। जी ऐसा नहीं, मगर कनाडा में हम ऐसा ही करते हैं। मलिका जिंदाबाद। क्योंकि इस रिवायत का आगाज यहीं से यानी दूसरा सलातीन से हुआ। सलातीन 11:13। जब अतलिया ने, वही शरीर औरत, ये उन्हीं 4 लोगों में से एक है जिनके मुतालिक कल मैंने आपको बताया था कि उन्हें कैसे बरतरफ करके नाबूद किया गया। सलातीन 11:13। जब अतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना तो वो उन लोगों के पास खुदावंद यानी यहोवा की हैकल में गई। सलातीन 11:14। और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सुतून के यानी उसी पत्थर के जिस पर याकूब सर रखकर सोए थे, ये यहाँ भी मौजूद है, और इसी पत्थर पर बादशाह को मसा किया गया था। सलातीन 23:1। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। सलातीन 23:2। और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। और उसने जो अहद की किताब, और यहाँ फिर अहद का जिक्र है, जो यहोवा के घर में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। जो यहोवा के घर में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़ के सुनाई। और बादशाह सुतून के बराबर खड़ा हुआ, यानी उसी पत्थर के जिस पर याकूब सोए थे, और यहोवा के हुजूर अहद बांधा। और उसने यहोवा की पैरवी करने, ये कैसा पत्थर है जिसे याकूब ने इस्तेमाल किया था, और इस वक्त ये कहां है? हाल ही में इस पत्थर को इंग्लिस्तान से वापस स्कॉटलैंड मुंतकिल किया गया है। हम में से कितनों का ताल्लुक स्कॉटलैंड से है? मैं तो इसे कबूल नहीं करने वाला, क्योंकि वो इंतहाई बददिमाग होते हैं। आप में से कितने आयरिश हैं? ओह चलिए, स्कॉटिश लोगों का तो बंदोबस्त हो गया। आप में से कितने आयरिश हैं? ऐसा ही है, आप खुशकिस्मत हैं। आप में से कितने हैं जो अंग्रेज हैं? आप में से कितने न्यूफी हैं? हम जीत गए। न्यूफाउंडलैंड, मेरा ताल्लुक वहीं से है। वही लतीफ लोग जिनका ताल्लुक कनाडा की मशरकी साहिली पट्टी से है। इस पत्थर को स्कॉटलैंड में बड़ा अहम माना जाता है। उनका कहना है कि ये उस अमूदी पत्थर का हिस्सा है जो कि अब टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, और अगर किसी बादशाह या मलका को मसा करते वक्त उसके तख्त के नीचे यह पत्थर नहीं होता तो उसे बादशाह या मलका नहीं माना जाता। ये देखिए, ये वही पत्थर है जो किंग जेम्स के तख्त के नीचे नस्ब है। लियाफेल का तर्जुमा बड़ा पत्थर नहीं है। ये गैलिक जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है तकदीर का पत्थर। कल रात ही मैं और स्टीव गैलिक जबान के बारे में बात कर रहे थे। ये तकदीर का पत्थर कहलाता है। याकूब का सतून, ये उस बादशाह के तख्त के नीचे से पुकारेगा जो आयरलैंड पर हुक्मरानी करेगा।
यह भी कहा जाता है कि एक सुर्ख बालों और छाइयों वाले नौजवान की आमद पर यह पत्थर पुकार उठेगा। आयरिश मनगढ़ंत किस्सा। ये क्या है? इसके क्या मायने हैं? यशुआ ने क्या फरमाया था जब आपसे कहा गया कि इन लोगों को खामोश करवाइए जो होशाना पुकार रहे हैं? आपने फरमाया अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर पुकार उठेंगे। आप क्या फरमा रहे हैं? आप पत्थरों के मुतालिक फरमा रहे हैं। ये है मलका आलिया, मलका एलिजबेथ। आप भी इन्हें मलका आलिया बुला सकते हैं क्योंकि वो दाऊद की नस्ल से आपकी मलका हैं। आप मेरा यकीन नहीं कर पा रहे हैं ना? अभी तो मैंने अपने मुकदमे का आगाज भी नहीं किया। इस पैगाम की तैयारी के दौरान मुझे भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, ताहम मुझे तो इसे मुकम्मल करना ही था। ये देखिए, ये यादगार आयरलैंड में है। इसी जगह पर पहली मर्तबा इस पत्थर को लाया गया था। कोई बता सकता है ये आयरलैंड के किस हिस्से में है? आयरलैंड का दुश्वार तरीन खित्ता कौन सा है? जी हां, शुमाली आयरलैंड। ये पत्थर इसी खित्ते में है। क्यों? ओह, ये शुमाली आयरलैंड में टेरा के मुकाम पर नस्ब है। ये सब बातें मेरी जुबान की नोक पर हैं और मैं ठीक तौर पर इनके मुतालिक जानता हूं। मैं पिछले 5 मिनट से इस पर बोल रहा हूं और मजीद भी बोलना चाहता हूं। मुझे इसे साबित करना है। पैदाइश 35 बाब 11 आयत। और एलोहीम ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। तू इसराइल कहलाएगा, सो उसने तेरा नाम इसराइल रखा। और यहीं से हमें इसराइल का नाम सुनने को मिलता है। आप सभी जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। याकूब के 12 बेटे थे। याकूब इसराइल के 12 बेटे लिया से रोबिन, शिमौन, लावी, यहूदा, इश्कार, जबूलून, दीना, राखल से यूसुफ, बिन्यामीन, जुल्फा से जद और आशर, बिल्हा से दान और नफ्ताली। लिया से आपके रोबिन, शिमौन, लावी, यहूदा, इश्कार, जबूलून और दीना पैदा हुए। यही 12 कबीले हैं। ये चारों खवातीन एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। उनकी विरासत जीन्स अलग थीं। यही वजह है कि उनके बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते थे, ताहम उनमें मुशाबत भी थी। मुझे वो बाग बहुत अच्छे लगते हैं जहां मुख्तलिफ किस्म के फूल हों। ऐसे मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। यही कुछ यहोवा ने भी किया कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ शक्ल शबाहत अता फरमाई ताकि खूबसूरत नजर आए। पहला तवारीख 5 बाब 1 आयत। और इसराइल के पहलोटे रोबिन के बेटे, क्योंकि वो उसका पहलोटा था, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने अपने बाप के बिछोने को नापाक किया था। रोबनी कौन है? वो फ्रांसीसी हैं। वो फ्रांसीसी क्यों हैं? क्योंकि वो रोबनी हैं। ये बात रोबिन की सरिश्त में है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सौतेली मां के साथ मुबाशरत का ख्वाह था। उसकी सौतेली मां कम उम्र ही थी, लगभग रोबन की उम्र की। अब यहां हमें वो फ्रांसीसी रोमानवियत नजर आती है। फ्रांस की हर चीज में रोमान है। वो कहते हैं हम फ्रांसीसी लोग बहुत रोमांटिक हैं, बहुत रोमांटिक। जी, ये उनकी आदत है, ये उनकी कौमी खसलत है। इसी वजह से रोबिन ने अपना पहलौठे का हक खो दिया। चुनाचे रोबिन ने इसराइल का नाम कभी ना पाया। और ये बातें आज भी रोबिन में देखी जा सकती हैं। रोबिन पानी की तरह बेसबात है, यही उसका निशान भी है। हम थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। वो पानी की तरह बेसबात है। 17वीं सदी में क्या हुआ था? रोबिन जो कि पहलौटा था, तकरीबन तमाम शुमाली अमेरिका पर काबिज हो गया। क्या कहते हैं उसे? मुआहदा लुजियाना, यही था ना? जी, खरीद लो लुजियाना। आपने कितनी रकम अदा की थी? ज्यादा नहीं, उसे कनेडियन फंड से अदा किया गया था। जी, एक दौर में जमीन पर रोबिन का कब्जा था। हो सकता है आप सब भी इस वक्त फ्रांसीसी बोल रहे होते। आज भी फ्रांसीसी नाम सुनाई देते हैं। मिस्टर कोटे, मेशो डिमो, असेमुआ। जब फ्रांसीसी पहली मर्तबा मिसिसिपी पहुंचे तो उस वक्त मेरे आबाओ अजदाद दरिया मिसिसिपी के किनारे आबाद हुए थे। ये सब बातें कनाडा की तारीखी कुतुब में दर्ज हैं। क्या बात है! उन्होंने इस सरजमीन का उरूज देखा है, फिर अमरीकियों ने कब्जा कर लिया। मैं मजाक कर रहा हूं। खैर, पैदाइश 48:15 में एक और बरकत का जिक्र है। यहां याकूब अपने 12 बेटों को बरकत देते हैं, लेकिन यहां आपने कुछ अलग काम किया। यूसुफ के पहलोठे को दाहिने हाथ से बरकत दी जानी चाहिए थी।
मगर याकूब ने अपने हाथों को कुछ ऐसे कर दिया। आप सब ये वाकया पढ़ चुके हैं। ये इंतहाई अहम बात है, इसमें एक पेशगोई है क्योंकि याकूब ने ये सब कुछ जानबूझ के किया। छोटा बड़े से ज्यादा बुजुर्ग होगा और बरकत भी छोटे को ही मिलेगी, लेकिन बड़े को भी बरकत दी जाएगी। इसे पढ़िए, देखिए यहां क्या बात की जा रही है। आप अमरीकी बरतानिया से ही निकले हैं, हम सब एक ही असल से हैं। आप हम में से हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, और सबसे बढ़कर आप हम हैं। हमसे मुराद बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं, और न्यूजीलैंड के अलावा इस वक्त यहां सभी मौजूद हैं। जबरदस्त। चुनांचे ये बरकत बड़ी मायने खेज है। मगर यूसुफ पर यह बात नागवार गुजरी और आपने उन्हें रोकने की कोशिश की। याकूब ने क्या फरमाया? क्योंकि यूसुफ को लगा कि यह ठीक नहीं है। अगली आयत में हमें याकूब का बयान मिलता है। पैदाइश 48:19, उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है इससे भी एक गिरोह पैदा होगी और यह भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई से बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। पैदाइश 48:20, और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इस्राएली तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि एलोहीम तुझको इफ्राइम और मनस्सी की मानित इकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। यहां आपने इसराइल का नाम इफ्राइम को मुंतकिल किया। इफ्राइम को, ये नाम इसराइल, ये नाम इसराइल ना तो इसराइली रियासत है और ना ही यहूद, ये इफ्राइम है। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने इस्राएली रियासत का नाम रियासत इस्राइल रख तो लिया है, लेकिन आपसे आपका नाम छीनकर आपको उन बातों में उलझा दिया है जो सब लोग आपके मुतालिक करते हैं। यह इंतहाई पेचीदा है, निहायत पेचीदा। इसे आसान बनाइए, दोबारा शुरू कीजिए, तरतीबवार चलिए, एक वक्त में एक कदम, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। याद है मैंने आपको 7 गिनना सिखाया था? अपने 7 साल के बच्चे से पूछिए, वो भी आपको बताएगा। लेगो ब्लॉक्स की तरह एक के ऊपर दूसरा। जबकि नबूवत की रूह अब भी याकूब पर थी, आपने अपने सभी बेटों को इकट्ठा किया ताकि उन्हें बताएं आखिरी दिनों में उनकी औलाद कैसी होने वाली है, यानी हालिया दौर, आखिरी अयाम। दीगर नबूवतों में से जिनके मुतालिक हम आगे चलकर बात करेंगे। ये तो मेरे ही अल्फाज हैं, मुझे लगा मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। दर्जसेल नबूवत यहूदा और असाए शाही के मुतालिक है। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। आगे हम इन्हीं बातों पर रोशनी डालने वाले हैं। और ना उसकी नस्ल से शरीयत देने वाला मौकूफ होगा। सो यहूदा जो इसराइल में सकूनत पजीर है, मुझसे आकर कहता है कि तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहूदा हूँ, शरीयत देने वाला। ये अलग बात है कि मैं खुद शरीयत पर उस तरह अमल नहीं करता जैसा उसमें दर्ज है, लेकिन मेरे पास इसे तब्दील करने का इख्तियार भी है, और वो इसी आयत का इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रुक जाइए, ये दुरुस्त नहीं है। शरीयत को वैसे माने जैसे मानने का हुक्म है। किसी को भी इसे तब्दील करने या मनमानी तफसीर करने की इजाजत ना दें, ना मुझे, ना अपने वालिद को, ना अपने भाई, और ना ही किसी और को। जैसा हुक्म है वैसे ही शरीयत पर अमल कीजिए, आपको बस इसे पढ़ना है। यह आसान है। पैदाइश 49:1, और याकूब ने अपने बेटों को यह कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। पैदाइश 49:2, ऐ याकूब के बेटो, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। मुझे अंदाजा नहीं कि आज किस वक्त, लेकिन आगे चलकर हम नकाबत पर बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी अलामतों पर गौर करें। रूबन, पैदाइश 49:3, ऐ रूबन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब। फ्रांसीसी ऐसा ही तो करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हमारे पास इक्तदार होना चाहिए क्योंकि हम फ्रांसीसी हैं। क्यूबेक में फ्रांसीसी कानून राइज है, लिहाजा सूबा क्यूबेक में अंग्रेजी समेत किसी भी दूसरी जबान का इस्तेमाल ममनू है। क्योंकि हम फ्रांसीसी हैं, हम सबसे अफजल हैं क्योंकि हम फ्रांसीसी हैं। यही वजह है कि मैं फ्रांसीसियों से प्यार करता हूं, क्योंकि वो मेरे अजदाद की नस्ल से हैं। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है, और रूबन की अलामत यह है।
मसीही हलकों में भी रूबन की दो अलामतें हैं, आदमी और पानी। पैदाइश 49:4, तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजिस किया। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजिस किया। पानी की तरह बेसबात के क्या मायने हैं? जरा फ्रांसीसी हुकूमत पर नजर कीजिए। उनके पार्लियामेंट कितने हैं और उनके कितने आइन कवानीन हैं? बेतहाशा, पानी की तरह बेसबात। वो चीजों को गडमड ही करते रहते हैं क्योंकि वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। आइंदा इलेक्शन तब्दील होंगे। हम अगले इलेक्शन 5-6 नहीं 2 साल बाद ही करा देंगे। कुछ ऐसे हैं फ्रांसीसी। चलिए अब अगले पर चलते हैं। शमौन, पैदाइश 49:5। शमौन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। पैदाइश 49:6। ए मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो, ए मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की कोंचें काटी। पैदाइश 49:7। लानत उनके गजब पर क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूंगा। वाह! आप में से कितने शमाउनी हैं? कोई रजामंद नहीं है। आप में से लावी कितने हैं? अरे यार, ठीक है, चले मैं दूसरी तरह से पूछता हूं। आप में से कितनों को अपनी खानदानी अलामत के मुतालिक मालूमात है? एक हो गया। और कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। आप में से जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से कितने हैं जिनकी खानदानी अलामत पर तलवार का निशान बना हुआ है? ओह, वो रहा एक लावी। वहां पीछे एक शमाउनी भी है। ये आप है मेरे भाई। यार, काश मैं हाथ ना उठाता। लेकिन शिमौन एक अजीम कौम थी। आप सब उनकी तारीख से वाकिफ हैं। मैं चंद एक के बारे में बताता हूं। ट्रोजन्स। ट्रोजन्स दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगजुओं में से एक हैं। तकरीबन हर कौम को शमाउनियों की जरूरत है, क्योंकि वो एक अस्करी कुवत हैं। वो इस काम में माहिर हैं। देखिए, मैं चीजों को तरतीब देने में अच्छा हूं, इसलिए मैं यही काम करता हूं। जो काम मुझसे नहीं हो पाता, उसे मैं किसी और के सुपुर्द कर देता हूं। हम सभी के पास कोई ना कोई सलाहियत है जो कि खुदा ने हमें विरासत में अता की है। शमाउन और लावी दोनों ही जंगजू हैं, क्योंकि उन्होंने सिकम को कत्ल किया। आपको यह वाकया याद ही होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उनकी बहन की इस्मत दरी की, और यही दुरुस्त इंसाफ था। शमाउन और लावी, ये रही उनकी दूसरी अलामत। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े नहीं किए और उनकी खानदानी अलामत में यह निशान बना हुआ है? एक महल। कोई नहीं? इसे कहते हैं एक अच्छी फोन कॉल। शायद वीडियो देखने वाले ये सुन ना पाए, लेकिन किसी फोन से नरसिंगे की बड़ी आवाज सुनाई दी गई, जिसकी वजह से हम सब रुक गए हैं। क्या बात है! और अब कोई गालों पर लाली लिए बाहर जा रहा है। मैं भी अपने फोन पर कुछ ऐसा गाना लगाना चाहता था, लेकिन आज भी मैं फ्लिप फोन इस्तेमाल करता हूं। ये रहा लावी का एक और निशान, एक महल। यह आपको कई खानदानी अलामात में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 12 कबाइल में से शमाउन और लावी ही जा बजा बिखरे हुए हैं। आप में से कितने हैं जिनकी खानदानी अलामात पर बब्बर शेर का निशान है? ये यहूदा का निशान है। आप इसे इसराइल में भी देख सकते हैं। यहूदा का बब्बर, है ना? ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदाह करेंगे। गिनते जाइएगा, तवज्जो दीजिए। तेरे भाई तेरी मदाह करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शिलोह ना आए और कौमें उसकी मुती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा।
وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ دیکھیے یہاں شیر ببر کی اصطلاح کتنی بار استعمال ہوئی ہے؟ 3 بار۔ اسی وجہ سے یہاں 3 ببر شیر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یہودا کا نشان ہے۔ کیا آپ نے یہ کہیں نشان دیکھے ہیں؟ جی نہیں، جی جانے دیجئے۔ جی ہاں، یہ ہر جگہ ہے، نہ کہ محض یہودا میں۔ کسی نے انگلستان کہا؟ بالکل ٹھیک۔ زبولون 49:13۔ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی، اور یہ ان کی علامت ہے۔ آئیے اب ان بھائیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں جو ذرا کم مشہور ہیں اور جن کی علامات کی نشاندہی کرنا یا صحیح اندازہ لگانا قدرے مشکل ہے، لیکن لوگوں کا ان کے بارے میں یہی کہنا ہے۔ اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوش نما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ بڑی عجیب برکت ہے یہ۔ لیکن آپ اشخاص پر نہیں بلکہ اقوام پر نظر کیجئے۔ کون سی قوم یہ سب کر رہی ہے؟ فن لینڈ۔ جی، فن لینڈ۔ ارے وہاں پیچھے ایک فن بھی موجود ہے۔ کیا میں نے بتایا کہ زبولون کون تھا؟ میں بتانا بھول گیا تھا۔ کیا کوئی یہاں ڈچ ہے؟ کوئی نہیں؟ جی کوئی تو ہمارے درمیان ڈچ ہوگا۔ لکڑی کے جوتے، لکڑی کا سر، کسی کی مت سنا کر۔ اوہو، یہ ہے ایک۔ شکر ہے آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ یہ اسرائیل کی ضدی طبیعت اور ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کی توضیح کرتا ہے، یعنی آپ سب کی۔ زبولون ہالینڈ ہے۔ وہ سمندر کو پیچھے دھکیلتے اور اس سے منتخب معدنیات نکال کر اپنی بندرگاہوں پر لاتے ہیں۔ دان کا نشان دیکھ کر آپ کو کیا یاد آ رہا ہے؟ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا، چنانچہ دان ایک قاضی ہے۔ عبرانی زبان میں دانیل کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں، اس کے معنی ہے قاضی۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افئی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دان کا دوسرا نشان کیا ہے؟ ایک سفید گھوڑا۔ یہاں آئرش کون ہے؟ یہ رہا آپ کا نشان، دان یعنی عقاب۔ ڈینش کون ہے؟ ڈینش دان ہے، کیونکہ دانیوں نے اپنی ہر چیز کا نام اپنے باپ دان کے نام پر رکھا ہے۔ ڈینیوب، ڈینابر، ڈینیز، وہ دان یعنی ڈنمارک سے وابستہ ہوگا۔ وہ دان ہے۔ جد پر ایک فوج حملہ کرے گی، پر وہ اس کے دمبالا پر چھاپا مارے گا۔ ایک انوکھی برکت۔ کوئی سوئس ہے یہاں؟ کوئی نہیں؟ قیاس ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ عاشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ یہ ہے عاشر کی قومی علامت۔ یہ بیلجیم ہے۔ بیلجیم، یہ وہ پیالہ ہے جو بادشاہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ نفتالی مجھے بہت پسند ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ بھی مسکرائیں گے۔ نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی۔ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، یعنی وہ دانائی کی باتیں کرتا ہے۔ چھوٹی ہوئی ہرنی سے کیا مراد ہے؟ نفتالی کسی بھی زندہ چیز سے جنسی تعلق بنا سکتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ نفتالی کی نسل مل جائے گی۔ شمالی ہندوستان۔ کیا آپ شمالی ہندوستان یا ہندوستان کے طبقاتی نظام سے واقف ہیں؟ سب سے نیچے کالے، پھر سانولے اور پھر آتے ہیں ہلکے رنگ والے۔ ان میں ایک طبقہ براہمن کہلاتا ہے جو ابراہیم سے ماخوذ ہے۔ گو وہ ایسا نہیں مانتے، لیکن قیاس آرائی یہی کی جاتی ہے۔ نفتالی شمالی ہندوستانیوں کے ساتھ مخلوط ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں میں نفتالی چین بھی گیا۔ چین، میں کچھ جلدی بول رہا ہوں، اور بعد میں انہوں نے ناروے اور سویڈن کی طرف کوچ کیا۔ سویڈن میں جنسی مساوات کا نظام کئی ممالک کے بنسبت بہت پہلے رائج ہو چکا تھا۔ یہاں شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کی شرح 90% سے بھی زیادہ ہے، اور طلاق دینے کے لیے کوئی خاص وجہ درکار نہیں ہوتی۔ زیادہ تر فحش مواد بھی سویڈن سے آتا ہے۔ اور جب میں نے آپ سے مشرقی ترکی اور مسلم لوگوں کا ذکر کیا تھا، وہ جن سنہری بالوں والی
औरतों का नाच गाना देखते हैं, वो सब स्वीडिश हैं। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। कोई ऐसा है जिसके शजर नसब में भेड़िए का निशान है? ऑस्ट्रेलवी असल में इंग्लिस्तान से निकले हैं। ठीक है, ये वो कैदी थे जिन्हें वो अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लिहाजा उन्हें सजा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। वाइकिंग्स ने इंग्लिस्तान पर हमला किया था और वाइकिंग्स का निशान है भेड़िया। इनका निशान है भेड़िया। बहुत से वाइकिंग्स बिन्यामीनी हैं। ये लीजिए, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। उस पर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि आपके काम की बात है। तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है। तीरंदाज किसे कहते हैं? दौरे हाजिर के तीरंदाज क्या हैं? आज के तीरंदाज कौन है? मिसाइल। और कमान क्या है? एक मिसाइल लॉन्चर। यूसुफ कौन है? मैं, आप, हम सब हैं। दोनों भाई मुनस्सी और इफ्राइम। यूसुफ को मिसाइलों से सताया जाएगा। ये देखा आपने? एक मर्तबा फिर से पढ़िए। तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है। पूरी दुनिया अमरीकियों से बेपनाह मोहब्बत करती है। जी नहीं, वो वाहिद जगह जहां से आपको कुछ प्यार मिल सकता है कनाडा है। बाकी तमाम दुनिया आपसे नफरत करती है। मैं अपने अल्फाज के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन आप बड़े शैतान हैं। इसराइल छोटा शैतान है, आपका भाई यानी यहूदा। क्या वजह है कि तमाम दुनिया सिर्फ इन्हीं दो ममालिक से नफरत करती है? क्योंकि आप रिश्तेदार हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन तमाम बातों का ताना बाना एक ही है, आप कराबती हैं। और यही वजह है कि दुनिया आपसे अदावत रखती है। जी हां, हो सकता है कि यह आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी हो। अरे जो यहां एपेक रवाबित के लोग भी मौजूद हैं, इसलिए अपनी चोंच बंद रखो। 24वीं आयत, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के एल का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हो नाजिल होंगी। हमें इंतहाई गैर मामूली बरकत अता की गई है। और यूसुफ के निशान हैं कमान और एक सिंगा। यह मुमकिन ही नहीं। एक अफसानवी मखलूक यानी एक सिंगा इनका निशान ठहरा। एक सिंगा तो कश्ती नूह पे चढ़ ही नहीं पाया था, तो उन्हें इसका इल्म भी नहीं होना चाहिए। किंग जेम्स बाइबल का मुताला करने पर एक सिंगे का जिक्र मुतादिद बार मिल जाएगा। दरअसल ये नबूवत है। आज अपनी खानदानी अलामत में एक सिंगा कहां दिखाई देता है? इंग्लिस्तान की शाही ढाल की एक जानिब और उसकी दूसरी जानिब एक बब्बर शेर है। जरा ध्यान दीजिए, आपकी तवज्जो यहीं रहनी चाहिए, मैं इस पर जोर दे रहा हूं। देखिए, यहां बैल का निशान भी है। इंग्लिस्तान का एक और नाम भी है, जॉन बुल। जॉन बुल को अंकल सैम भी कहा जाता है। जी हां, अंकल सैम। जरा समझिए, यह अलामत एक ही है क्योंकि वो भाई हैं। यूसुफ एक फलदार पौधा है, मैं इसे पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये रहे यूसुफ के कुछ और निशानात। क्या आप इन अलामात को पहचानते हैं? मेरे खानदान में गंदुम के फूलों का निशान मौजूद है जो कि मनस्सी को जाहिर करता है। तीर का निशान देखा है कहीं आपने? मुझे नहीं पता, मैं तो अमेरिका में बैठा हूं। हां, जेम्स को इसका इल्म हो सकता है, वो इस अलामत को पहचानते हैं शायद, पता नहीं। पत्ते, जैतून की 13 डालियां और 13 तीर आपने कहां देखे हैं? ये आप ही की अलामत है। ये रहा लावी का एक और निशान। क्या आपकी खानदानी अलामत में यह निशान है? ये रहा एक सिंगा और बब्बर शेर। ये इंग्लिस्तान का निशान है।
जरा गौर कीजिएगा, एक सिंगा जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्यों? इसलिए कि एक सिंगा असीरी में गया और कभी वापस नहीं आया। एक सिंगा इसराइल की नुमाइंदगी करता है, जबकि बब्बर शेर यहूदा की नुमाइंदगी करता है, और ताज भी बब्बर शेर के सर है, ना कि एक सिंगे के। ये वो अलामात हैं जो रोजाना आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, इसलिए आपको ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके शजरा नसब का हिस्सा हैं। इसे नकाबत कहते हैं। नकाबत ही सबसे खालिस और मौजू तरीन लफ्ज है, और मेरे जहन में कोई दूसरा लफ्ज आ भी नहीं रहा। आप अपनी मर्जी से कोई भी अलामत नहीं चुन सकते, क्योंकि वो आपको विरासत में मिली है, और अगर आप कोई मुख्तलिफ अलामत चाहते हैं तो आपको इसे अलग से शामिल करना पड़ेगा। जरा दरमियानी अलामत पर गौर कीजिएगा। आपको वो 3 बब्बर शेर याद हैं? ये रहे वो 3 बब्बर शेर जो कि दोनों वतरी कोनों पर हैं, और यहां एक और बब्बर शेर भी है जो कि 2 पैरों पर सीधा खड़ा है। 2 पैरों पर खड़ा सुर्ख बब्बर किसकी अलामत है? ये स्कॉटलैंड है। मैंने सोचा शायद हम कोई खेल खेल रहे हैं। अरे ये तो मैं ही हूं, आप भूल गए आप कौन हैं? जरा इस अलामत की तरफ देखिए, एक सुर्ख बब्बर शेर, एक सुर्ख बब्बर शेर। ये 3 बब्बर शेर शाही नस्ब की नुमाइंदगी करते हैं, यहूदा यानी इंग्लिस्तान। लेकिन इसमें एक बरबत भी है। ये बरबत कहां से आया है? दाऊद बादशाह से। बरबत किस कौम की अलामत है? आयरलैंड। ये उनका मिली निशान है। दाऊद बादशाह आयरलैंड आए थे। क्या? मैं तो समझ रहा था आप एक छोटे से गिरोह के हुक्मरान थे जो इसराइल के नक्शे और उसकी हुदूद से कभी बाहर नहीं निकले। जी नहीं, बल्कि आपकी सल्तनत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। आप आयरलैंड आए, आपने वहां का दौरा किया, और आपकी मोहब्बत की वजह से ही उन्होंने बरबत को अपना निशान बना लिया। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या आप उस गुले लाला को देख सकते हैं? यह किस चीज का निशान है? रियासत इसराइल का कौमी फूल कौन सा है? कौन सा कौमी फूल? आप अपनी बेटियों के नाम उसके नाम पर रखते हैं। मुझे याद था, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, शायद मैं भूल गया हूं। मेरी मदद कीजिएगा। शारून की नरगिस? शायद यही है। मैं अपने नोट्स में से ढूंढकर आपको बताता हूं। ये देखिए, 13 धारियां, जैतून के 13 पत्ते और 13 तीर। इस उकाब के सर पर ऊपर दाऊद का सितारा क्यों है? क्या आपको यहां दाऊद का सितारा दिखाई दे रहा है? सितारों के दरमियान। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि सितारा दाऊदी और दूसरे सितारे शिकायना के अंदर हैं। वो अबर जो कि सरपोश को घेरे रहता था। अमेरिका को यह अलामत कैसे मिल गई जहां कुछ यांकीज ने शाह इंग्लिस्तान के खिलाफ बगावत की थी? उनकी 13 कॉलोनियां हैं, लेकिन आखिर ये 13 ही क्यों हैं? यहोवा मुसलसल आपको कुछ दिखाना चाह रहे थे। आप इसराइल के 13 कबीलों का हिस्सा हैं। ये 13 कैसे हो गए? ओ हां, यूसुफ को मुनस्सी और इफ्राइम को तकसीम कर दिया गया, लिहाजा वो भी याकूब ही की औलाद कहलाए। तो वो 12 की बजाय 13 हुए, है ना? सिर्फ यहूदा नहीं, 13 धारियां, 13 अव्वलीन रियासतें, 13 लंदन का मुबारक हिंसा भी 13 ही है। जी नहीं, वो 8 है, जो कि बड़ा ही बाबरकत अदद है। ठीक हो गया, ये रहा स्कॉटलैंड का शाही निशान। मैं इसे पढ़ने लगा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे सीखें। इसे पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुकाशफा की किताब में यशुआ अपने मुतालिक फरमाते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। इसका मफहूम ये है, अल्फा और ओमेगा यानी हुरूफ तहज्जी के पहले और आखिरी हर्फ हैं। नया अहदनामा इसी जबान में लिखा गया था। इन्हें अपनी जात के लिए बतौर नाम इस्तेमाल करके यशुआ ये बता रहे हैं कि मैं अजली और अबदी यहोवा की जात का हिस्सा हूं। हम एक ऐसी चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं जो ऐन आपकी नजरों के सामने है। आप इसे देख नहीं पा रहे। मैं इंतहाई शादमान हूं क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन आप इसे देख ही नहीं पाते।
ये हरूफ इब्रानी हरूफ तहज्जी के अलिफ और ताव हैं। आप सभी को इसका इल्म है क्योंकि आप मुझसे बेहतर इब्रानी जानते हैं। और असली इब्रानी हरूफ तहज्जी में अलिफ को एक तिरछी सलीब यानी एक्स की तरह लिखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें एक सिंगे के सर के ऊपर मौजूद नीले झंडे में एक्स का सफेद निशान है। और ताव एक अमूदी सलीब है, बिल्कुल उस सुर्ख सलीब की तरह जो बब्बर शेर के सर पर है। इसी तरह जब इन्हें जोड़ दिया जाए तो वो दायम यहोवा के तसव्वुर को जाहिर करेंगी, बिल्कुल उन सलीबों की तरह जो बरतानिया के अलम और झंडों पर बनी हैं। शिमाली हिस्पानिया, केल्टिक और इसराइली झंडों के अलावा ये यूनियन जैक पर भी है। O.R. तोरा ये एक किताब का नाम है। O.R. तोरा के मुसन्निफ डो बेर B.E.R. अलमारूफ मेगीर मेजरेट्स तोरा के पहले लफ्ज की तफसीर कुछ इस तरह करते हैं, बेरेशीत बैरा एलोहिम एत। मैं माजरत चाहता हूं, मेरी इब्रानी बहुत कमजोर है। पैदाइश पहला बाब पहली आयत अबरानी में बेरेशीत बैरा एलोहिम एत। गौर कीजिएगा, एत E.T. एक नाकाबिले तर्जुमा लफ्ज है जो कि इस बात की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आगे कोई खास मुस्तहकम शय आने वाली है। बेरेशीत बैरा एलोहिम एत मतलब आसमानों और जमीनों से पेशतर एत का होना जरूरी है। लेकिन डो बेर जो किताब का मुसन्निफ है बताते हैं कि एत के हिज्जे, गौर से सुनिए, एत के हिज्जे हैं अलिफ ताव जो कि अलिफ बेत का मुखफ़फ़ है। अलिफ इब्रानी हुरूफ तहज्जी का पहला हर्फ है। चूंकि यहोवा ने आसमान और जमीन को खल्क करने से पहले यह काम किया था, लिहाजा इन हुरूफ को तमाम मखलूकात की तख्लीक का मंबा गर्दाना जाता है। अलिफ वो एक्स है जिसे इसराइल के एक सिंगे के सुपुर्द किया गया है, और ताव वो सलीब है जो यहूदा के बबर के पास है। और ये रही बरतानिया उज़्मा के यूनियन जैक की अलामात। आपके सामने है, आप कौन हैं? यूनियन जैक और बरतानिया उज़्मा की ये अलामतें और यहूदा का बब्बर आपको इंग्लिस्तान में हर जगह दिखाई देगा। अहलियाने अहद यसाया 49 बाब जो कि आखिरी दौर के मुतालिक पेशन गोई है, यहोवा इरशाद फरमाते हैं कि ए जजीरो मेरी सुनो, ए जजीरो मेरी सुनो। यहां किसकी बात की जा रही है? यहां सरजमीन इसराइल की बात की जा रही है। ए उम्मतो जो दूर हो कान लगाओ। ये कलाम किसके लिए है? इसराइल के लिए। यसाया 49 बाब 1 आयत। ये पैगाम इसराइल की शिमाली सल्तनत के लिए है जो दूसरी कौमों के दरमियान परागंदा हो चुकी है। यहोवा यूं फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा। यहां एक मर्तबा फिर अहद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मीरास वारिसों को दे। किसी ने कुछ कहा? क्या आपको समझ आई? ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मीरास वारिसों को दे। अहद के लिए इब्रानी में ब्रेत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खुजात 8 बाब 33 आयत और 9 बाब 4 में इसे इसमें मार्फा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बाल बेरेत इसका मतलब है अहद का बाल। इब्रानी में मर्द के लिए ईश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इस इब्रानी लफ्ज को जिसका मतलब अहद है अंग्रेजी में पढ़ें तो ये बनता है ब्रिट। अहलियाने बरतानिया बिलाशुबा बरतानवी लोगों को अक्सर ब्रिट्स पुकारा जाता है, और अगर ब्रिटिश का इब्रानी में लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो ये बनता है मर्द अहद या अहद का मर्द। अहलियाने अहद इन बातों को झुटलाते हैं, चाहे मेरा आप यकीन ना करें। कई लोग इसे बरतानवी इसराइलियत कहते हैं। ऐसा नहीं, ये एक गैर मुनसिफाना फैसला है। जरा गौर कीजिए, इन्हें गलत साबित करके दिखाइए। बरतानवी इसराइलियत दरअसल ये कहना है कि हम सबसे बरतर हैं, और ये गलत है। याद है मैंने कल क्या कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेवन किए गए हैं या पैदाइशी हैं, आप इसराइली ही हैं। लेकिन आप दूसरों से बेहतर नहीं, क्योंकि खुदा ने बेवजूदों को अजीम बनाया
تاکہ ہم ان کی عظمت کو مان جائیں، حقیروں کو۔ ابراہم سب قوموں سے کم تر تھے، نہ کہ عظیم تر۔ ویلز کے لوگ اپنے لیے قدیم ویلش زبان کی اصطلاح بریتھ اے بریتھن یعنی برٹن کے بریتھ کا استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہیں عہد کی سرزمین کے عہد کردہ لوگ۔ ویلز اور جنوبی انگلستان میں سب سے پہلے بسنے والے سمونی تھے، یعنی شماؤن کے قبیلے کے لوگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اچھی یا تھوڑی بہت عبرانی جانتے ہیں تو آپ ویلز جا کر بغیر کسی مترجم کے ویلش بول سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک کنیڈین اور ایک ٹیکسن آپس میں بات کریں۔ دراصل یہ برطانیہ یا لندن اور یا اس کے مضافات میں بولی جانے والی انگریزی کی طرح ہے، اور مجال ہے مجھے آپ کی انگریزی کا ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے، لیکن یہ انگریزی ہے۔ یا برونکس یا آسٹریلوی اور جنوبی افریقی بولنے والے یہاں موجود ہیں، ذرا ان سے بات کر کے دیکھیے، وہ انگریزی نہیں بولتے، آسٹریلوی بولتے ہیں۔ وہ دیکھیے ایک تو سٹیون کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کی بات سمجھنے کے لیے ایک مترجم درکار ہے۔ میں صرف مذاق کر رہا تھا، سارا کمال دراصل لہجے کا ہے۔ اگر میں فرانسیسی بولنے کا خواہش مند ہوں تو مجھے اپنی انگریزی کے ساتھ فرانسیسی بولنے کی مشق کرنا ہوگی، ویسا ہی لہجہ اپنانا پڑے گا، اور کچھ ہی عرصہ بعد میں فرانسیسی میں ماہر ہو جاؤں گا، ہے نا؟ لہٰذا سارا فرق لہجے کا ہے جس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ ویلز میں عبرانی بول سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ویلش الفاظ کی لمبی فہرست ہے جو عبرانی الفاظ سے مماثل ہیں اور ان کا مطلب بھی ایک ہی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب ہمیں اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہماری تاریخ مظلوموں پر آ کر رک جاتی ہے؟ جبکہ میں نے اپنے شجر نسب کا بنام سراغ لگایا اور پھر میں نے انہیں قبائل کے مطابق کیلٹک قبائل میں تلاش کرتا ہوا این اس دور تک گیا جب کیلٹک قبائل برطانیہ آئے تھے، اور میں جانتا ہوں کہ بیشتر کیلٹک قبائل کہاں ہیں۔ لیکن ایک دشواری یہ ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ کیلٹک قبائل آئے کہاں سے ہے، کیونکہ کیلٹک قبائل مشرق سے آئے ہیں۔ اس موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے ہم اگلے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب وقت یہ ہے کہ اپنے ذہن پر کچھ زور دیا جائے۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ آئیے گنتی کی کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ گنتی کی کتاب میں ہم آپ کو ایسی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہاں ہمیں بیابان میں خیمہ اجتماع پر شکائنا کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں آپ کے ملی نشان پہ آپ کے صدارتی مہر پر بھی شکائنا موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں موجود ہے۔ جی نہیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، میں اسے کیوں مانوں؟ یہ تو وہی برطانوی اسرائیلیت والی بات ہے، یا یہ ہمارے مضبوط دلائل کے لیے مضر ہے، ہم اسے کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ یہ ایک اور تصویر ہے، گنتی 10 باب کی 13ویں آیت۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، ان کا پہلا کوچ ہوا، اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا۔ جھنڈے کے لفظی معنی دریافت کیجئے۔ ایک اور لفظ ہے پرچم، اس کے بھی معنی دریافت کیجئے۔ یہاں کتنے افراد فوج سے وابستہ ہیں؟ جھنڈے کا مطلب کیا ہے؟ پرچم سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک پلٹن کا نشان ہوتا ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کس دستے سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ گنتی کی کتاب میں ہم اسی نشان، پرچم، جھنڈے یا علم کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان سبھی کا مطلب ایک ہے، ہر قبیلے کا ایک جھنڈا تھا۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، ان کا پہلا کوچ ہوا، اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ سو آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص ترتیب کے مطابق کوچ کیا کرتے تھے۔ ہم تھوڑا جلدی کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص ترتیب سے کوچ کرتے تھے، مگر یہودا پہلے روانہ ہوا۔ روانہ ہوا، آپ اب بھی نہیں سمجھے؟ ایک مرتبہ پھر اسے پڑھیے۔ اور بنی اسرائیل کا پہلا کوچ ہوا، اور سب سے پہلے یہوہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ میرے خیال میں کوئی اور آیت پڑھ رہا ہوں، کہاں گئی وہ؟ یہ رہی۔ اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ جی نہیں، مودا
सरजमीन में सबसे पहले लौटने वाला कौन था? यहूदा, शेर बब्बर। जी हां, अब आप समझ रहे हैं। ठीक है, आप खुद से गिनती 10 बाब को पढ़ सकते हैं। खैमागाह को एक मखसूस तरतीब से तैयार किया गया था। हर दल का एक खास झंडा था जो उसके कबीले की नुमाइंदगी करता था, और उस कबीला के नुमाइंदा 4 निशानात यानी 4 सरकर्दा कबाइल थे: यहूदा, इफ्राइम, दान और रोबन। खैमागाह के चारों अतराफ 4 कयामगाहों के 4 कोने, और वो चारों निशानात कैसे दिखते थे? उकाब, शेर बब्बर, बैल और इंसान की तरह। क्या आप जानते हैं? ये एक करूबी है। हिस्कियल में मज़कूरा करूबी ऐसा ही दिखता है। क्यों? इन्हें हमेशा से ही यहोवा की पाकीज़गी के साथ मुंसलिक किया जाता रहा है। आदम के गुनाह के बाद करूबियों को ही अदन के दरवाजा पर हयात के दरख्त की राह की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। वो एक रास्त हुकूमत के नुमाइंदा हैं। वो यहोवा की रास्त हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। वो उन यहोवा के अदल और मुकद्दस अहकाम को पूरा करने वाले हैं। हिस्कियल 1, 5 और 10 अबवाब में करूबियों को 4 जानदारों की सूरत में दिखाया गया है, जिनमें से हर एक के 4 चेहरे हैं। एक इंसान का, एक शेर बब्बर का, एक सांड का और एक उकाब का। अब ये हूबहू वो तस्वीर तो नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बेहतर तस्वीर यही लगी। ताहम ये ऐन तरतीब के मुताबिक नहीं है। अब इसे जरा बड़ा कीजिए। ये रही इसराइल की खैमागाह। इसराइल की खैमागाह को मरकजी या सरकर्दा कबाइल की नुमाइंदगी में कायम किया गया था, जिसमें नुमाइंदा झंडे या पेशतर व अलम यानी नुमाइंदा निशानात, और आप जानते हैं निशानात से मेरा क्या मतलब है, शनाख्त, अलामात, निशान, ये रहे हर कबीले के अहम निशानात। गौर कीजिए, वो करूबी की तरह दिखते हैं। एक मर्तबा फिर से देखिए, यहाँ उनकी तकसीम दिखाई गई है, क्योंकि खैमा इज्तिमा के चारों अतराफ हर कबीला के एक फरीक यानी 3 कबाइल का सरकर्दा था। और फिर आते हैं लावी, जिन्हें उस मुकाम की हिफाजत पर तैनात किया गया था, ताकि कोई भी वहां दाखिल न हो पाए। अगर वहां गया, खा वो चरिंद हो, दरिंदा हो या फिर बच्चा, वो जान से मारा जाएगा। काफी सख्त था ये। आइए मिलकर देखते हैं। गिनती 2 बाब 2 आयत। बनी इसराइल अपने अपने डेरे, अपने अपने झंडे के पास और अपने अपने आबाई खानदान के अलम, झंडे या परचम के साथ खैमा इज्तिमा के मुकाबिल और उसके गिरदा गिर्द लगाएं। और जो मशरिक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है, अपने डेरे अपने दलों के मुताबिक लगाएं। वो यहूदा की छावनी के झंडे के लोग हों और वगैरह वगैरह। और उस दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो सब 74,600 थे। और आप जानते हैं कि और भी बहुत सी बातें थी, मगर हर कयामगाह को इसी तौर से तरतीब दिया गया था और हर बार वो इसी तरह से कूच करते थे। अंदाजा कीजिए, आज की कौमें जिन्हें इसी तरह तरतीब दिया गया है, यहूदा मशरिक की तरफ। ये इंतहाई हैरान कुन है। हमें खुरूज से पहले की जाने वाली नकल मकानियों से भी सीखना है, सो अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा। आप जानते हैं मैंने आपको हल्का सा इशारा दे दिया है, लेकिन अब हमें कुछ और भी सीखना है, क्योंकि खुरूज से पहले भी कुछ हुआ था। हमें नकल मकानियों से सीखना है। एक तो मूसा थे, जिनकी क़यादत में बनी इसराइल ने नकल मकानी की, मूसा, देनोस, कैदमस। लेकिन मूसा से पहले भी कुछ खुरूज हुए थे, आप खुमाश कह लें। खुरूज से 30 साल पहले इफ्राइम ने अपने तौर पर नकल मकानी की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने 430 बरस का हिसाब 100 साल पहले ही लगा लिया और 30 साल पहले रवाना हो गए। चुनाचे वो फलस्तियों के हाथों अर्ज़ मऊदा की शिमाली शाहराह पर कत्ल किए गए। मूसा ने जनूब की जानिब से सफर क्यों किया? इसलिए कि वो शिमाली रास्ता से खौफजदा थे कि 30 बरस पहले इसी राह पर इफ्राइम को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आप इस वजह से खुमाश की हवाशी में पढ़ सकते हैं। अब ये दैनूस और कैदमस कौन हैं? एक बार फिर अपने इंसाइक्लोपीडिया यानी ब्रिटानिका को पढ़िए। ना तो बरतानवी इसराइलियत पर यकीन करें और ना ही आर्मस्ट्रॉन्गिज्म पर, बल्कि अपने इंसाइक्लोपीडिया से रुजू कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ वहां दर्ज है। मेरा यकीन मत कीजिए, मैं तो कैनेडियन हूं। हम वो सब बातें पहले से जानते हैं जिनसे आप बेखबर हैं। अब मिस्रियों का कहना है कि इन वाकयात के बाद, किन वाकयात के बाद? 10 आफात के बाद कई गिरोह बड़ी तादाद में मिस्र से बराह रास्त इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ये इक्तबास कर रहा हूं, निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाकर आबाद हो गए। वहां ये भी लिखा है कि वो दैनोस के साथ
निकले थे, देनोस, DAN, दैन, इस तरह देनोस दान मिस्र से बजरिया बहरी जहाज एक ऐसे मुकाम पर जा बसा जो दरअसल यूनान का कदीम तरीन शहर कहलाता है। आर्गोस, टोरंटो आर्गोनाट्स, आर्गोस, आपने आर्गोस का नाम सुना है? कदीम यूनानी तारीख का मुताला कीजिए। और 35 में कौल की अकवाम COLCHI और अरब और शाम के बीचों बीच रहने वाले यहूदियों और कुछ और तारकीन वतनों ने अपने मुल्कों से आकर नई आबादियां कायम कर ली थीं। इसका जिक्र हमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में मिलता है, जिसमें अहलियान आर्गोस और यूनान की दूसरी 9 आबादियों का मवाजना उन्हीं यहूदियों से किया जा रहा है जो आज भी बहरा रोम के मशरिक में आबाद हैं। ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, और लोग गुमराह होकर किसी और राह पर चले जाते हैं। और यही वजह है कि अरसा दराज से इन लोगों में अपने लड़कों का खतना करने का रिवाज पाया जाता है। लेकिन नए अहदनामे के मुताबिक ये हुक्म मनसूख हो चुका है। क्या वजह है कि ये लोग अपने बच्चों का खतना करते हैं? क्योंकि ये रस्म उन्हें याकूब, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के 12 बेटों की तरफ से मिली है। यही वजह है कि बनी इस्माइल भी अपने बच्चों को खतना के बारे में सिखाते हैं। लड़कों का खतना करने की रस्म मिस्र से वहां पहुंची थी। जी, वो मिस्र में असीर थे। हम यही बात कर रहे थे कि ये मूसा के पैदा होने से भी पहले की रस्म है। एक और दिलचस्प कहानी, हत्ता के अथेने के रहने वाले भी कहते हैं कि उनके यहां मिस्रियों की 9 आबादियां मौजूद थीं। यहां मैं तारीख डायोडोरस सिसिली का हवाला पेश कर रहा हूं, जिल्द नंबर 1, किताब नंबर 1-2, 1-34, सफा नंबर 1-34, 19-33, सफा नंबर 91। ये मैं नहीं कह रहा, तारीख की किताबों में लिखा है। हेकातेस, जो एक मौर्रिख था, बयान करता है कि मिस्रियों ने, जो कि पहले ही मुसीबतों से परेशान थे, ये क्या है? ओ खुरूज, गजब इलाही को टालने के लिए तमाम गैर मुल्कियों को बाहर निकाल दिया। देखिए, यहां यह बताने की बजाय कि मूसा उन्हें निकालकर कहां ले गए थे, वो ये बता रहे हैं कि हमने खुद ही उन्हें निकाल दिया है। जी नहीं, मूसा उन्हें ले गए थे। ये खुरूज है, तमाम गैर मुल्कियों को निकाल दिया, तमाम गैर मुल्कियों को जमा किया। जी हाँ, मुझे वीडियो के दौरान पढ़ने में दुश्वारी होती है। 30 कोशिशों के बाद भी मैं एक ही सत्र को नहीं पढ़ पा रहा हूं। तमाम गैर मुल्कियों को जो मिस्र में आ बसे थे बाहर निकाल दिया, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो दैनोस और कैदमस की कयादत में यूनान की जानिब नकल मकानी करके गए, बाकी दूसरे इलाकों में बस गए और ज्यादातर शाम की जानिब हिजरत कर गए। शाम वही खित्ता है जो आज इसराइल कहलाता है, यानी फलस्तीन। यह हवाशी में दर्ज है। कहा जाता है कि उनके रहनुमा का नाम मूसा था, एक ऐसा शख्स जो मशहूर था। या तो कौन कह रहा है? कदीम मौर्रिख हेकातेस, हेकातेस, HECATAEUS। इस पर तहकीक करें। एक और मुसन्निफ बनाम म्यूलर भी अपनी तसनीफ फ्रैगमेंटा हिस्टोरिकोरम में, जो लातीनी में है, इन वाकयात को वैसा ही बयान करता है जैसा कि हेकातेस ने कलमबंद किया है। ये 6ठी सदी की दस्तावेज हैं और ये निहायत दिलचस्प हैं। ये बरतानवी इसराइलियत नहीं बल्कि 6ठी सदी है। जाहिर है यहां जिन मुसीबतों का जिक्र किया जा रहा है वही 10 आफात हैं जो यहोवा खुदा की तरफ से नाजिल की गई थीं, जो सब हमें मालूम है। पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, ये वो किताबें हैं जिसे बेशतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बस नाम, जगहें, पैदाइशें। ये बाइबल की सबसे दिलकश किताब है। गो कि पूरी बाइबल लाजवाब है, लेकिन हमारे मौजू के लिहाज से ये बड़ी दिलकश किताब है। ये जारा की औलाद है। जारा कौन? देखा, मैंने पहले भी इसे गडमड कर दिया था। वो तमर थी जिसने कसबी का रूप धार के यहूदा को अपनी तरफ माइल किया ताकि वो उसके साथ हम बिस्तर हो। ये लफ्ज इस्तेमाल करूं? ठीक है। क्योंकि तमर के शौहर के मरने के बाद वो यहूदा के बेटे से ब्याही नहीं गई थी।
बच्चों की पैदाइश से पहले एक का हाथ बाहर आया, वो ज़ारा था, और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन इससे पहले ही खादिमा ने उसके हाथ में एक डोरा बांध दिया। वो अपना हाथ वापस खींच लेता है और फारिस पहले पैदा हो जाता है, और वो कहती है ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। बाकी वाक्य आप जानते हैं, लिहाजा वो पहले पैदा हुआ और उस नस्बनामे में भी पहला ठहरा जो दाऊद बादशाह से होता हुआ सिदकिया तक पहुंचता है, जो कि फारिस की नस्ल का आखिरी बादशाह था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा ने झूठ बोला? दाऊद बादशाह के तख्त पर बैठने के लिए कभी आदमी की कमी ना होगी। बादशाह कहां गए? इस वक्त यहूदा के बादशाह कहां हैं? वो इसराइल में तो नहीं है, लेकिन वो किसी को बनाना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती है। ज़ारा अपना हाथ बाहर निकाला, उस पर डोरा बांधा गया, और ज़ारा का वो निशान मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन ज़ारा के 5 बेटे थे, जिमरी, एतान, हेमान, कलकोल। याद रखिएगा हमने कलकोल के मुतालिक क्या बात की थी। और दारा, कलकोल और दारा वो हैं जो मिस्र छोड़कर जा चुके थे। यह हवाला देखकर आप इसे पढ़ सकते हैं। सुलेमान बादशाह, पहली साला 3-4 बाब 30 आयत। मैंने पहले कभी इस पर तवज्जो नहीं दी थी। इस पैगाम की तैयारी के दौरान मैंने इस पर गौर किया। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी। सुलेमान को अब तक का सबसे अक्लमंद इंसान माना जाता है। पहला सलातीन 4 बाब 31 आयत। इसलिए कि वो सब आदमियों से बल्कि अजराही, एतान और हेमान और कलकोल और दारा से जो बनी महूल थे ज्यादा दानिशमंद था, और चौगिर्द की सब कौमों में उसकी शोहरत थी। क्या वजह थी कि सुलेमान को यह बताना पड़ा कि वो इन 5 अशखास से ज्यादा आकिल हैं? क्योंकि ये लोग हिकमत से मामूर थे। वो इंतहाई दाना थे, नबूवत समेत बाकी सब बातों को समझते थे, और उन्होंने ही वहां बसने वाली तमाम अकवाम को तरक्की की राह दिखाई थी। ये नामों की एक और फहरिस्त है, और अगर आप इन किरदारों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें इन नामों पर तवज्जो देने की जरूरत है। और उसकी औलाद ज़ारही, अजराही या अजराखी कहलाती थी। उनके लिए मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ हिज्जे इस्तेमाल हुए हैं। गिनती 26-20, पहला सलातीन 4 बाब 31 आयत, पहला तवारीख 27 बाब 1 और 8, और पहला तवारीख 27 बाब 11 आयत। और यही नाम नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। दैनोस और कैदमस की क़यादत में की जाने वाली हिजरतें और खुरूज। रुकिए, जरा रुकिए, ये सब क्या हो रहा है? वो जा क्यों रहे हैं? क्या वो इस हुक्म को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 430 साल के बाद तुम वहां से निकल आओगे? नहीं। इफ्राइम ने ऐसा क्या किया कि मारा गया? लेकिन ये उससे भी पहले की बात है। यहां क्या हुआ था? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। ठीक? मैं इस हवाले को बाइबल से नहीं पढ़ रहा। शायद कुछ देर में मैं इसे देखकर पढ़ूं, मुझे हवाला याद नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि यूसुफ के मरने के बाद हमारे और उनके बच्चे एक दूसरे को मार डालेंगे, और इसकी वजह वो तकालीफ थी जिनसे यूसुफ को गुजरना पड़ा था जब उसे गुलाम बनाकर मिस्र में भेज दिया गया। लिहाजा किसी तरह का खतरा उठाने से बेहतर यही था कि कूच किया जाए, क्योंकि उन्हें वो अफवाहें दुरुस्त लगने लगी थीं। बस पहले कलकोल रवाना हुआ और उसके पीछे दारा भी निकल गया। और फिर यूसुफ ने फरमाया कि मत डरो, तुमने तो बदी करने का इरादा किया था, लेकिन यहोवा ने उससे नेकी का कसद किया। और यही इख्तिताम है, और यही सब कुछ हुआ। अंदाजा लगाइए। सब्बती और योबली सालों के मुताबिक ये तारीख और वाकयात इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मुताबिकत रखते हैं कि किस तरह इन ममालिक की इब्तिदा मुल्क मिस्र से हुई थी। उस साल तक न बेईमानी, न हेरा फेरी, न तुकबंदी। वो बराह रास्त इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दर्ज है, और वो सब्बती युबली अदवार से पूरे तौर पर मुताबिकत रखता है। दैनोस और कैदमस की क़यादत में और मूसा की क़यादत में किया जाने वाला खुरूज ही महज दस्तावेजात में दर्ज नहीं है। कैक्रोप्स बादशाह ने एक और अहम नौ आबादी की बुनियाद रखी, जो रिवायती तौर पर अतीकिया का पहला बादशाह था। आगे चलकर देखेंगे कैक्रोप्स एक इसराइली था।
हार्म्सवर्थ इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक, ना कि जो ड्यूमेन बता रहा है। हार्म्सवर्थ इंसाइक्लोपीडिया बयान करता है कि कैक्रोपस यानी पहला तवारीख 2 बाब 6 आयत कालकोल और पहला सलातीन 4 बाब 31 कालकोल और उसका भाई दारा एथेंस का पहला अफसानवी बानी और बादशाह था। ऐसा माना जाता है कि वो मिस्र से ताल्लुक रखने वाले नए आबादकार गिरोह का सरकर्दा था। वाह! क्या इंसाइक्लोपीडिया में ये सब दर्ज है? आपके सामने है। इसीलिए उनकी औलाद को ज़ारही पुकारा जाता है, ZARHITES, जैसे मेरी औलाद को ड्यूमेंडी पुकारा जाएगा। आपकी औलाद आपके नाम से कहलाएगी। इसराइली, क्या ये इसराइली पनाह गुज़ीन गिरोह एशियाई कोचक या यूनान में ही नहीं बसे रहे, या फिर उन्होंने मजीद सफर करके समंदर पार करके दूर दराज इलाकों में सकूनत इख्तियार कर ली? बस अब हम नामों का सुराग लगाएंगे, क्योंकि ये जान लेने के बाद कि मिस्र छोड़ने के बाद उन्हें किन नामों से पुकारा जाता था, हम तारीख के पन्नों से उनका सुराग लगा सकते हैं, इसलिए कि तारीख में उनका जिक्र मौजूद है। लेकिन आपको अंदाजा नहीं आज वो क्या कहलाते हैं, लिहाजा अब हमने बनी इसराइल के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली। उनकी अलामात के बारे में हम पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम अहले यूनान के बारे में जानेंगे और फिर हम यूरोप से होते हुए फिर बनी इसराइल पर बात करेंगे। चुनाचे यूरोपिडीज और यूनानी जुग्राफिया दान और मौर्रिख स्ट्रैबो के मुताबिक ये वो जगह हैं जहां दैनूस और कलकोल के लोग आबाद थे और वो अपने आप को इन नामों से पुकारते थे: देनाय, पेलियासेगियोथे, पेलोपोनेसस, आर्गोज, आर्गाइव्स, आखाई। ये सब इसराइली कबाइल हैं और यूनान में ही हैं। यूनान में यह हमारी तवज्जो अहद जदीद की दिलचस्प पेशनगोई की जानिब मबजूल करवाती है। मुझे आयात तो याद नहीं, यसु ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आप यूनानियों के पास चले जाएंगे? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि आप बाबलियों के पास चले जाएंगे? क्योंकि यूनानी उनके भाई थे और वो ये बात जानते थे, इसलिए कि यूनान यानी एथेंस और यरूशलेम वालों के बीच खतो किताबत हुआ करती थी। आपको एली याद है, वो भारी भरकम शख्स जो काजियों में से थे? उसने उन्हें लिखा था कि हाँ, तुम हमारे भाई हो। उनके पास ये दस्तावेजात मौजूद हैं। हमें क्यों नहीं सिखाया जाता? देनोस, दारदा, दारा, दारदेनस, दारदानियाल, ट्रॉय। क्या आप जानते हैं कि दारदानियाल कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गया, आप अमरीकी हैं, आप अपनी हदों से परे नहीं जानते। कनाडा शिमाल में है, मेक्सिको जनूब में है, वही है जिन्हें आप फौरन अंदर नहीं आने देते। कैनेडियन से आप मेलजोल नहीं रखते। ये तुर्की है और ये रहा दारनियाल, जो दारा के नाम से मंसूब है, जो कि ट्रॉय का बानी था। आपने ट्रॉय की जंग के बारे में सुना होगा। मिस्र से पहली हिजरत के बाद वो क्रीट पर लंगर अंदाज हुए और उन्होंने क्रीट में इसराइली नामों वाले शहर आबाद किए। लेकिन फिर वहां एक धमाका हुआ, कुछ बहुत ही बुरा। ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वो क्या था, लेकिन गुमान किया जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी कड़ियां खुरूज से मिलती हैं। और 3 दिन तक आसमान तारीक रहा। 3 दिन तक उस गहरी तारीकी को याद कीजिए। यहां एक आतिशफिशा फटने की बदौलत बहिरा ईजा के किनारे आबाद बहुत से शहर बर्बाद हो गए थे। कहा जाता है कि जब दारदेनस और दारदानियाल में आया, ये ट्रॉट की रिवायत है कि वो एक तबाहशुदा बहरी जहाज पर सवार था। जहाजों का एक ऐसा बेड़ा, ये धमाका किसी आतिशफिशा के फटने की वजह से हुआ। ये वो अलामत हैं जो ट्रॉय के इलाका से ताल्लुक रखती हैं। सांप, जो कि एक ट्रोजन की अलामत है। दान की अलामत भी सांप ही है। दारदा दान है। त्रोआस, दारेनास और बातिया, एरकोथनियस और आस्ट्यूश, तेरोस और कालेरोहो, ये नाम जो आप देख रहे हैं उसी नस्ल की औलाद हैं। कुछ अफसाने बड़े ही अहम बन जाते हैं और उन पर बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई जाती हैं। अब मैं अपनी रफ्तार को बढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी ट्रॉय और हेलेना की कहानी से वाकिफ हैं। ये हकीकी किरदार हैं। ये बनी इसराइल हैं जो एक अलग रिवायत के हामिल हैं। लेकिन आप खुद से भी इस मवाद पर तहकीक कर सकते हैं और अपने इंसाइक्लोपीडिया से खुद ही इसे साबित भी कर सकते हैं। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है क्योंकि इसे देखते हुए मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन सा किरदार किसका है और मुझे पता होता है कि उनके नाम क्या हैं और वो कहां जाते हैं। इस फिल्म के किरदार का नाम पेरिस है।
पेरिस, मुझे मालूम नहीं वो कहां गया था। छोड़िए अभी। आपको मालूम है? जी, आपको मालूम है? जी हां, ये जंग 1194 से 1184 कब्ल मसीह में हुई थी, जो कि तारीखी एतबार से बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी तरह की जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि बिल्कुल मुनासिब बैठती है। एक्लीस, जिसे एड़ी पर चोट आई थी, ऐसा माना जाता है कि इसी ने हेक्टर को कत्ल किया था, जो कि ट्रॉय का वली अहद था। लेकिन ट्रॉय की ये जंग हारने के बाद उस बादशाह के 50 बेटे, जो कि बादशाह बनने के लिए पुरउम्मीद थे, वो सब के सब परागंदा होकर बहीरा ईजा के अतराफ मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। वो सब वहीं आबाद हुए। ताहम घोड़े से उनका लगाव बरकरार रहा। दान और घोड़ा, आज भी अगर आप आयरलैंड जाएं तो वहां आपको पहाड़ों पर तराशे गए सफेद घोड़े देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि उन्होंने घोड़े को अपनी पहचान बनाया, क्योंकि यही अलामत है जो उनके लिए कुछ मायने रखती है। ये कुछ और बोरियत भरी बातें हैं, वही शजर नसब और तारीख जो कि बताती है कौन क्या था और किसने क्या किया था। मेरे लिए तो बातें बड़ी ही दिलचस्प हैं, क्योंकि मुझे तारीख से बड़ा लगाव है। लेकिन वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है, इसलिए मैं जरा जल्दी करूंगा। देखते हैं मैं इसे कहां खत्म कर सकता हूं। वैसे मेरा बयान अभी आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप नाम बनाम देखेंगे तो आपको यहां यूरोप के सभी बादशाहों के नाम मिल जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि रोम में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो कि यहूदा की औलाद में से था। उसके बच्चे के बारे में पेशनगोई थी, लेकिन उस शख्स को वो पेशनगोई पसंद नहीं आई। चुनाचे उसने पेशनगोई करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया। और पेशनगोई ये थी कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है अपनी मां और बाप को मार डालेगा। ये डरावनी खबर थी। जब वो पैदा हुआ तो उसकी मां उसे पैदा करते ही चल बसी। पेशनगोई का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। बादशाह अपने बाप के हमरा तीरंदाजी की मशक करते हुए बदकिस्मती से उसका एक तीर उसके बाप को जा लगा, जिससे वो भी मर गया। उस बच्चे का नाम ब्रूटस था। अब ये शख्स जिसका नाम ब्रूटस था, यहूदा की औलाद में से था। ब्रूटस तक अपनी एक तारीख है जो आप इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ सकते हैं। इन सभी ममालिक को ट्रोजन नस्ब से ताल्लुक रखने वाले शाहाने यहूदा ने आबाद किया था। ट्रॉय और उसके 50 बादशाह यहूदा की औलाद हैं। हम अभी तक यहूदा पे ही हैं। अभी हमने ज़ारा के मुतालिक बात नहीं की। उनमें से चंद के नाम ये हैं। ये उन उर्फी नामों की लातीनी शक्ल है। यहूदा जुपिटर भी कहलाया जाता है। देवमालाई दास्तानों में जुपिटर नामी एक देवता का जिक्र भी मिलता है, क्योंकि कुछ दास्तानें भी सच्चाई पर मबनी होती हैं जो किसी मुकाम पर आकर तगय्युर का शिकार हो जाती हैं। यही वजह है कि इन किस्से कहानियों पर तहकीक करके हकायक पर गौर किया जाना चाहिए, ताकि बामकसद और बेमकसद बातों में तमीज करके मामलात को तरतीब दिया जा सके। रोमा, अंदाजा लगाइए कि रोमा या तमर कौन है। मैंने जवाब भी साथ ही दे दिया है, इसलिए सवाल बनता ही नहीं है कि रोमा तमर है। अब ये सारी अक़वाम आपकी नजरों के सामने हैं। ये इटली का नक्शा है, और अगर आप इन पर तहकीक करें तो नस्ल दर नस्ल आपको ये सिलसिला वहां मिल जाएगा। आपको इसे ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये यहीं हमारी तारीखी कुतुब में दर्ज है। मजीद हम सेल्वस और ब्रीटो के बारे में देखते हैं। मैं थोड़ा तेज चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि तारीख इंतहाई तवील है और ब्रूटस, लिहाजा अब मोमनाउत का जेफरी। क्या कोई जानता है मोमनाउत का जेफरी कौन है? 8वीं सदी का एक मौर्रिख जिसका ताल्लुक इंग्लिस्तान से था। 8वीं सदी की तारीख पर बात करें, यह बयान करता है ब्रूटस इंग्लिस्तान से आया था। ब्रूटस ट्रोजन्स के ग्रोह के हमरा उन तमाम ममालिक से होता हुआ पेरिस पहुंचकर और उनसे लड़ा, लेकिन फ्रांसीसियों ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया और वहां से वापसी पर उसने एक मुकाम पर पड़ाव डाला जो कि लुदेनियम या लाइट या लूद कहलाता था। लूद, लंदन। लुदेनियम, जी हां, शुक्रिया। मैं मुख्तसर करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, लगता है आप थक चुके हैं। उसने लंदन के एक मुकाम पर डेरा डाला। लंदन के मरकज में एक गिरजाघर है जो मुकद्दस पौलुस के नाम से मंसूब है, जिसकी बुनियाद ब्रूटस ने रखी। और यहां उसने एक पत्थर भी खड़ा किया जिसकी तारीख बड़ी ही दिलचस्प है, और ये हमारी तारीख है। आप इनमें से कुछ मकामात को देख सकते हैं। ये वही मकाम है जहां उसने पड़ाव किया था। मेरा शजरा डेवन और समरसेट से इलाका रखता है। और क्या आप जानते हैं
کہ यहोशुआ की जिंदगी के वो साल जिनका जिक्र बाइबल में नहीं है समरसेट में गुजरे थे। मैं ये सब कैसे जानता हूँ? मेरे कुछ अजीज समरसेट में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक जगह है जहाँ के मुकामी लोग यहोशुआ और उनके कामों का जिक्र करते हैं जो आपने वहाँ किए थे। वहाँ एक छोटा सा जजीरा है जिसे जजीरा वाइट कहा जाता है। अंदाजा लगाएं वहाँ कौन आया था? यूसुफ अरमतिया, जो के रिश्ते में मुकद्दसा मरियम के चचा और यहोशुआ के बुजुर्ग थे। यूसुफ के इंतकाल के बाद उनका आखिरी तज़किरा तब मिलता है जब यहोशुआ की उम्र 12 साल थी, तो वो उसके सरपरस्त बने और उस बेड़े ने बहरा रूम और बहरा ओकियानूस में 3.5 साल तक सफर किया और यहोशुआ उनके साथ थे और उन्होंने सीसा हासिल करने की गर्ज से जजीरा वाइट पर पहला पड़ाव किया। यूसुफ अरमताई एक रोमी सूबेदार थे, प्रोकॉन्सल थे, वो एक रोमी ओहदेदार थे। कैसे वो सीधा पिलातुस के दरबार में चले गए और मारे नहीं गए? क्योंकि वो एक रोमी सूबेदार प्रोकॉन्सल थे, जिसका मतलब ये है कि वो यरूशलेम की ताकतवर तरीन शख्सियत थे और वो सिनहेड्रिन के रुकन भी थे। लिहाजा इन दोनों ओहदों की बदौलत ही आपने लाश ले जाने का मुतालबा किया, क्योंकि आप रिश्तेदार भी थे, सूबेदार प्रोकॉन्सल भी थे और रुकने सिनहेड्रिन भी थे। वही यहोशुआ को लाए थे और जजीरा वाइट में वाक़या उन 3 की कानों में जो यूसुफ अरमताई के नाम से मंसूब हैं, यहोशुआ के मुतालिक एक गीत लिखा हुआ है। वहां कांच की रंगीन खिड़कियां भी हैं जिन पर एक लड़के की तस्वीर नक्श है जो यूसुफ अरमतिया के हमरा एक कश्ती पर सवार होकर इंग्लिस्तान आ रहा है। उसके बाल सुर्ख और चेहरे पर छाइयां हैं। वो यहोशुआ है। शिमाली अमेरिका के मुकामी लोगों में भी ऐसी ही एक दास्तान मौजूद है जिसमें एक नौजवान वहां जाकर उन्हें आने वाले वक्त के बारे में बताता है। मेरे पास मिशिगन की कुछ तकावीम है जिनमें यहोशुआ की तस्लीब का जिक्र है। अव्वलीन हिस्सों में आपकी आमद और आइंदा वक्त के मुतालिक की जाने वाली बातों का जिक्र है और बाद के हिस्सों में तस्लीब की तस्वीर हैं जिन्हें मिशिगन के मुकामियों ने बनाया है। उनके खंडरात आज भी सेगेनाउ के बाहर मौजूद हैं। ये लॉन्दिनियम में वाक़ वही मुक़द्दस पौलुस वाली जगह है जहां ब्रुटस का पहला दारुल हुकूमत था। ये वो पत्थर है जो वहां नस्ब है। ये उन सभी बातों का गमाज है और ये सारी तारीख इसी से वाबस्ता है। ये आपके सामने है। ये तमाम पुरानी दस्तावेजात जिनमें ये सारी तारीख दर्ज है मकतबा बरतानिया में मौजूद हैं और अब तो इनकी नकूल भी तैयार की जा चुकी हैं जो कि आप ऑनलाइन दस्तयाब हैं, पढ़ सकते हैं। मैं तेज बोल रहा हूं लेकिन मुझे इन बातों को साबित करना है। अब तारीख की कुछ बात कर लेते हैं। तारीख के मुताबिक आप इस सिलसिले नस्ब को दाऊद बादशाह से लेकर बराह रास्त दौरे हाजिर में इंग्लिस्तान के बादशाह और मलिका तक देख सकते हैं। ये सब यहां मौजूद है। मैं आदम और हव्वा तक अपने शजरे नस्ब का सुराग लगा सकता हूं। मुझे चंद 100 साल पुराने कबाइल पर तहकीक करना पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि यहोशुआ कौन है। मैं तो बस अपने शजरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। ये इंग्लिस्तान का वो बादशाह है जो अपने ट्रोजन नस्ब से वाकिफ था। ये इंग्लिस्तान का वाहिद बादशाह है जिसने इस बात का इकरार किया था। चलिए एक वक्फा लेते हैं। जाकर खाना खाइए और सोचिए क्या इस शख्स का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या फिर ये सभी बातें सच हैं? क्या हम वाकई यूसुफ के कबीला से हैं, या 12 कबाइल में से किसी से, या उनमें से जो इसराइल का नाम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूं। जब आप वापस आकर दोबारा बैठेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। यकीनन मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा और ये जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादातर तस्वीर हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। क्या 10 गुमशुदा कबाइल का सुराग लगा पाना मुमकिन है? क्या तारीख उन्हें इसराइल के अलावा कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करते दिखाती है? क्या आप जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसे बड़े ग्रोहों का भी जिक्र है जो मूसा और खरूज से कबल मिस्र छोड़कर यूनान हिजरत कर गए थे? क्या आप जानते हैं कि असूरी बनी इसराइल को बैत खुमरी कहा करते थे? असीरी के बाद उनके असीर कनिंदगान उन्हें गुमेरी बुलाते थे, जबकि दूसरी अक़वाम उन्हें सेमरी पुकारा करती थीं और आगे चलकर यही लोग सोमेरी कहलाए। इन्हीं में एक ग्रोह था जो आमीरगी कहलाता था।
सल्तेक और गौली अक़वाम सुमेरियों से ही निकली हैं। आज हम उन्हें कल्तियों के नाम से जानते हैं और कुछ कल्ती एंग्लो सैक्सन्स यानी बनी इज़हाक कहलाते हैं। गैलिक लोग गौल की बंदरगाह से आए हैं जो कि दौरे हाजिर का पुर्तगाल है। इससे कबल वो हस्पानिया के शहर सरकिसा में आबाद थे और उससे भी कबल वो उन्हीं यूनानियों में से थे जो मूसा और खरूज से पहले मिस्र से निकल आए थे। क्या आपको मालूम है कि आपकी खानदानी अलामत से ये पता लगाया जा सकता है कि आप इसराइल के किस कबीला से हैं? आयरलैंड के झंडे पे बना सुर्ख हाथ तमर की कहानी बयान करता है कि कैसे ज़ारा ने फारिस से पहले अपना हाथ बाहर निकाला था। ये वही ज़ारा हैं जिनके नाम पर सरकिस्ता का नाम रखा गया। इंग्लिस्तान की अलामत पे जंजीरों में जकड़ा एक सिंघा इसराइल की असीरी और ताजदार शेर यहूदा के बबर को जाहिर करता है। आयरलैंड के कौमी झंडे पे दाऊद बादशाह की बरबत क्यों है? क्या वजह है कि यहूदा की तरह स्कॉटलैंड का निशान भी एक शेर है, लेकिन सुर्ख रंग का? नॉर्वेजी या वलंदेजी शेर और उनकी अलामात का इससे क्या ताल्लुक है? क्या आप अपनी दिलचस्प तारीख से वाकिफ हैं और जानते हैं कि इन आखिरी अयाम में आपके मुतालिक क्या नबूवत की गई है? अब वक्त है कि आप जानें कि आपकी पहचान क्या है, और अगर आप जान गए कि आपको क्या तलाश करना है तो आप इसे अपने इंसाइक्लोपीडिया से ही साबित कर लेंगे। जोसेफ एफ ड्यूमॉन्ट ने रिमेंबरिंग द सबैटिकल ईयर्स ऑफ 2016 में सबती और योबली सालों के मुतालिक उठने वाले हर सवाल पर तहकीक की है। सच्चाई को समझने के लिए आपको इन चीजों से किनारा कशी इख्तियार करना पड़ेगी जो कि सच नहीं है, और जो बाकी है वो सच्चाई है। रिमेंबरिंग द सबैटिकल ईयर्स ऑफ 2016 हर उस नजरिया की पड़ताल करती है जिनसे नुमाया होता है कि सबती साल कब थे, और फिर आप अपनी बाइबल को इस्तेमाल करते हुए खुद इसे कैसे साबित कर सकते हैं। जब आप इसे एक बार जान लेंगे तो आप पर भी इस नबूवत का इंकशाफ हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि मसीह किस दौर में आने वाले हैं। जिद्दत आफरी बसीरत से भरपूर किताब हिकमत और मुफीद मालूमात का माखज़ है, जो कि एक इंतहाई अहम मगर पेचीदा मौजू की मंजिलत को उजागर करने वाली रहनुमा किताब है। खालिक कायनात ने वक्त को कायम करने के लिए एक निज़ाम कायम कर रखा है, और इस निज़ाम को कायम करने के लिए हमें इनकी जानिब से ज़रूरी हदायत भी दी गई हैं। वक्त की इन अलामात का ताल्लुक हर तौर से नबूतों के साथ है, और साथ ही साथ ये वो ज़ुबान है जिनकी बुनियाद पर हदूद का तयन होता है और संगे मील अबूर किए जाते हैं। नबूवत ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को मुतासिर करती है, और इसी बिना पर कारी इस किताब का मरकजी किरदार बनकर सामने आता है। हमारे पास पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी कौम की मिसाल है जिसने कभी सबती साल की पासदारी की और कभी उसे नजरअंदाज कर दिया, और देखेंगे कि इनमें से हर मामले पर उन पर क्या गुजरी। आप इन्हें नजरअंदाज करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सबती सालों को ना मानने की लानतें हमारे दरमियान हैं, और वक्त के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। सच्चाई को जानने के लिए कलाम को ढाल बनाकर जंग लड़ना होगी। आज ही ये किताब हासिल करें और आज के आलमी सानहों को बाइबल की तफहीम के मुताबिक समझना शुरू कीजिए।